راز حق بات کہی جائے گی بے خوف و خطر، راز حق بات کہی جائے گی بے خوف و خطر، رسن و دار سے تم ہم کو ڈراتے کیوں ہو۔ یہ تھے حق بات کہنے والے بے خوف و خطر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، غیر مسلموں کے شبہات کا جواب دے رہے تھے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو سب سے مؤثر اور دلچسپ سیشن ہوتا ہے وہ سوال و جواب کا ہے۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے چند باتوں کا ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان بہن کے لیے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ میں نے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا نام اس لیے لیا کہ دیکھیے، میں بار بار اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ہم تمام مسلمان بھائی اور تمام مسلمان بہنیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے تمام غیر مسلم بھائی اور غیر مسلم بہنیں ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع دیں۔ میں اپنے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا وہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ جو ہے وہ ضرور بتائیں، سوال چھوٹا کریں۔ غیر مسلم بھائیوں کو اور بہنوں کو کوئی بھی سوال جو اسلام سے متعلق ہو، غلط فہمی، وہ ڈاکٹر ذاکر صاحب سے کر سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی کوئی فقہی سوال نہ کیجیے، اختلاف والا سوال نہ کیجیے۔ کوئی ایسا سوال جو نامناسب ہو تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ آج کے اس اجلاس میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ پہلا مائک میرے بائیں جانب ادھر بھائیوں میں، اسی طریقے سے دوسرا بھی بھائیوں کی جانب شعبے میں، اور اسی طریقے سے مائک نمبر 3 بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے، اور 2 مائک کا انتظام بہنوں کے شعبے میں، مائک نمبر 4 اور مائک نمبر 5۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی مائک نمبر 1 میں ہوں تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی نمسکار ذاکر صاحب، میرا نام ہے راجیشور، میں نوی ممبئی نیرول سے آیا ہوں، اور مجھے یہاں پر لے کے آ رہا ہے میرے دوست شری عظیم ملتانی نے۔ تو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں۔ تو میرا یہ کہنا ہے، ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ میں ہندو ہوں، مسلمان بولتا ہے میں مسلمان ہوں، سکھ بولتا ہے میں سکھ ہوں، کرسچن بولتا ہے میں عیسائی ہوں، تو سب لوگ اپنے اپنے دھرم کا اپنا پریچے دیتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دھرم کو بنایا کس نے ہے، اور اگر بنایا ہے تو کس مقصد سے بنایا ہے؟ کیا ہم صرف ایک دھرم کو مان نہیں سکتے ہیں جو کہ انسانیت دھرم ہے، اور کوئی دھرم کو نہ مانے، نہ ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، اور کسی بھی دھرم کو قبول کروانا کیا ضروری ہے؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ اور تھوڑا اور ایک سوال ساتھ میں اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے سر، میں پوچھنا چاہوں گا، بنا کسی دھرم کو قبولے بغیر کیا انسان نیک اور صحیح راستے پہ چل نہیں سکتا ہے؟ اور یہ جو اپنے اپنے دھرم کے گرو ہیں وہ کس لیے اپنے دھرم کا پرچار کرتے ہیں اور کس مقصد سے کرتے ہیں؟ یہ میرا پرشن ہے۔ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں ہندو ہوں، میں مسلم ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں، تو یہ دھرم کو کس نے بنایا؟ دھرم ہونا چاہیے کہ صرف، بالکل صحیح ہے، دھرم ہونا چاہیے کہ، اور وہ ہونا چاہیے انسانیت۔ اور کیا دھرم کو، بھائی صاحب پوچھتے دھرم ہونا چاہیے کہ، پھر پوچھتے کیا دھرم کو قبول کرنا ضروری ہے؟ اور کیا ایک دھرم میں ماننا ضروری ہے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کون کہتا ہے میں مسلم ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے سکھ ہوں۔ یہ دھرم کو کس نے بنایا؟ اور دھرم ہونا چاہیے ایک۔ آپ کا پہلے بھاگ جو سوال کا بالکل صحیح ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین صحیح ہے، وہ ہے اپنی زندگی
اللہ کے, خدا کے, ایشور کے, بھگوان کے احکامات کے مطابق بسر کرنا. تو دین ہونا چاہیے ایک ہی. یہ کتنے دین کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا. آپ کا سوال تھا کس نے؟ انسانوں نے. ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رب, ہمارا ایشور, ہمارا بھگوان, ہمارا اللہ صرف ایک ہی دین بنایا, ایک ہی مذہب بنایا. وہ ہے اب امن حاصل کرنا, شانتی حاصل کرنا, سلامتی حاصل کرنا اپنے خالق کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے بعد. اسی لیے دین, مذہب خالق نے صرف ایک ہی بھیجا, لیکن وقت کے دوران ملاوٹ ہوتے گئے, ملاوٹ ہوتے گئی. ملاوٹ ہونے کی وجہ سے اللہ نے دوسرے نبی بھیجا, دوسری کتاب بھیجی, پھر ملاوٹ ہوئی, پھر نئی مذہب, پھر اور ایک دوسرے پیغمبر بھیجے اور ایک کتاب بھیجے اسے صحیح کرنے کے لیے. اس طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے, کئی کتابیں بھیجے. آخری کتاب قرآن مجید. قرآن میں لکھے رہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, کہ ہر قوم پہ میں نے پیغمبر بھیجا. سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 7 اور سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. آخری کتاب ہے قرآن, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے خالق نے ایک ہی مذہب بھیجا, ہم نے اس میں ملاوٹ پیدا کی. مذہب کا اگر صحیح معنی لے, ہندو کا کیا معنی ہے؟ ہندو کی کیا معنی؟ ہندو کی معنی یہ ہے کہ جو انسان ہندوستان میں رہتا ہے, جو انڈس ویلی کے اس طرف رہتا ہے, اسے کہتے ہیں ہندو. یہ لفظ سب سے پہلے بار استعمال کیا تھا عربوں نے ہندوستانی کے لیے. تم اس لفظ کے اعتبار سے میں ہندو ہوں. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہندو وہ ہے جو بت پرستی کرتا, وہ غلط ہے. تو صحیح معنی ہندو کے میں ہندو ہوں. عیسائی کے معنی کیا؟ عیسائی کے معنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کر رہا ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے جو چیز سکھائی اس پہ عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اس سے زیادہ عیسائی ہوں, کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے باتوں پہ اور عمل کرتا ہوں بنسبت وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اور پکا عیسائی ہوں. جو کا مطلب کیا؟ جو کا مطلب وہ جو خدا سے, اللہ سے محبت کرتا ہے. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. مسلم کے معنی کیا؟ مسلم کے معنی وہ انسان جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد. میں مسلم ہوں. آپ سمجھ رہے؟ یہ ملاوٹ بعد میں آئی. جو عیسیٰ علیہ السلام نے سیکھا اس میں ملاوٹ آئی. علم ہے انسان کے جسم کے بارے میں. وہ خالق اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی لیے خالق جو کہتا ہے, ہمارے کو بنانے والا جو کہتا ہے, اس کے احکامات پہ چلنے سے اچھے مسلمان بن سکتے اور سب سے زیادہ سفتا مسلمان بن سکتے اور انسان بن سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مانتے ہیں خالق میں؟ خالق کا مطلب مجھے نہیں پتا. بنانے والا. آپ ایک ایشور میں مانتے, ایک خدا میں مانتے یا انیک خدا میں مانتے؟ نہیں, میں تو سبھی جگہ جاتا ہوں, مندر جاتا ہوں, مسجد جاتا ہوں, لیکن میں کسی کو مانتا نہیں. میں صرف یہ مانتا ہوں کہ میں بھی مندر جاتا ہوں, مسجد میں بھی مندر جاتا ہوں, مسجد جاتا ہوں. ایک پاور جو ہے جو ہم کو رول کرتی ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں. ایک پاور, دو پاور نہیں نا, ایک پاور جو ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں, ایک پاور کو مانتے ہیں, دو پاور کو مانتے ہیں؟ ایک ہی پاور کو مانتا ہوں. میں بھی ایک پاور کو مانتا ہوں. مندر بھی جاتا ہوں, مسجد بھی جاتا ہوں, لیکن مندر جا کے بت پرستی نہیں کرتا ہوں, مورتی پوجا نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ پاور کہتے ہیں مورتی پوجا مت کرو. مورتی مطلب وہ پاور والے کو آپ کم پاور دے رہے, برابر ہے نا. سارے پاور کو مورتی میں جا رہے. تو ہندو مذہب کہتی مورتی پوجا مت کرو, عیسائی مذہب کہتی مورتی پوجا مت کرو, قرآن کہتا مورتی پوجا مت کرو. ایک پاور, اس کو پاور کہو, ایشور کہو, خدا کہو, اللہ کہو, لیکن ایک ہے نا کہ دو ہے؟ ایک ہی ہے. بالکل. ایک پاور کو مانتے, بالکل. ایک ایشور کو مانتے, بالکل. ایک خدا کو مانتے, بالکل. ایک اللہ کو مانتے, بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟
गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत है। वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरिंग हूं, मुझे डर है। मैं मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा, मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है। मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है। आपके वेद में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद असली पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूं? चोरी करता हूं और गरीबों में बांटता हूं। सही है? गलत है। गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते क्या? चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बांटता हूं। अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो। मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से आप जानते हैं मूर्ति की पूजा गलत है, फिर क्यों करते? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। माशा, आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा, आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। कौन से? आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके दादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या गोल है? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, हाँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं है। बराबर। लेकिन साइंस कहती है मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके। जब तरक्की करते हैं गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे या छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं? इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं और अच्छे पीएचडी बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। थैंक यू जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सीमंत हेम्ब्रम। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं ईमान लाना चाहता हूँ। भाई साहब वो सही सुना। आपने कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? हाँ। भाई साहब मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। कोई प्रेशर नहीं? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? हाँ, एकदम। अपने जहन से? हाँ। खुले दिमाग से? हाँ।
क्योंकि इस हमारे मजहब में, इस्लाम में किसी को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना हराम है। ना ही इस्लाम में हराम है, इस देश हिंदुस्तान में भी किसी भी मजहब में जबरदस्ती कोई भी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना या कोई मजहबी बनाना इस देश में हराम है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने दिल से कोई मजहब बदलना चाहता है तो ये मुल्क उसको पूरी इजाजत देता है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कम मुल्क है दुनिया में, बहुत कम ममालिक है दुनिया में जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो द रिलीजन। हर हिंदुस्तानी नागरिक को इजाजत है कि वो जो भी धर्म चाहे उसके ऊपर अमल कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ये हिंदुस्तान बहुत कम ममालिकों में से है। ये बाकी मगरबी ममालिक कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं। ये वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं है। हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम खुश है कि इस देश में ट्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अमेरिका, इंग्लैंड कहती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी मेरे पीछे पड़ गई है। अमेरिका भी पीछे पड़ गई है मेरे, इंग्लैंड भी पीछे पड़ गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको हजम नहीं होता है। उनके स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं, एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं, एफबीआई को पसंद नहीं आ रहा है। डर है क्या कल मुझके ऊपर कोई लेबल लगा दे? ताकतवर है ना, कोई भी लेबल ताकतवर लगाता है वो लेबल चिपक जाता है। मैंने कहा ना मेरी तकरीर में। लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इंशाअल्लाह भाई मैं अरबी में दोहराऊंगा कलमे को। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके मेरा हैं। रिक्वेस्ट है मेरा, जी हाँ भाई साहब बोलिए। मेरे को बांग्ला में कुरान किताब चाहिए और सर इंशाअल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। माशाअल्लाह बहुत से बंगाली आ रहे हैं, वो भी मुंबई में। लगता है बंगाली चैनल शुरू करने के बाद बंगाली लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर। हमने तकरीबन 6 साल अंग्रेजी चैनल शुरू किया था, पीस टीवी, और तकरीबन 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, और तकरीबन 9 में पीस टीवी बंगला। वो हदीस अल्लाह के रसूल की क्या इंशाअल्लाह एक इस्लाम हर घर में फैलेगा, हर घर में पहुंचेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस नाचीज को जरिया बनाए इसको पूरा करने के लिए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी जरूरत ही नहीं। द रबिश दैट वी आर, हम जो रबिश है अल्लाह को हमारी जरूरत ही नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते कि हमें जरिया बनाए। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, अल्लाह ही काफे। अल्लाह को पीस टीवी की भी जरूरत नहीं, ना अल्लाह को जाकिर की जरूरत है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बे, ये फजल है अल्लाह का। और हम जो इतने गुनाहगार हैं फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते कि हमारी जो छोटी बोझ जिहाद है, जिहाद, लोग के कान खड़े हो जाते तो जिहाद कर रहे, जिद्दोजहद कर रहे अल्लाह के राह में, वो उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह भाई साहब आ सकते स्टेज के ऊपर। मैं आपको बंगाली कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके मुश्किल का हल करे और इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में आपको सफलता दे इंशाअल्लाह। जी माइक नंबर 3 में कोई भाई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहे कर सकते हैं।
नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर। मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं हैं? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं है या भगवान नहीं है? मेरा दूसरा पार्ट भाई साहब एक इसका सवाल अगला इंशाल्लाह। पार्ट भी है। क्या पूछा आपने? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं उसी के रास्ते पर को पाने के लिए, तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का दो सवाल है। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्या यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके जरा भी करीब नहीं है, ना यहां कौन उनके करीब है। वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और सबसे अजीम पैगंबर है। आपका दूसरा सवाल कि अगर मैं उनका अपमान करूंगा तो क्या गलत है का सही है? नहीं, उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए। उन्हीं का के एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूं जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूं वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूं, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूं, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूं, जो पैसे कमा। भगवान के लिए कहना चाहता हूं। भाई साहब आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए। सॉरी, आप सवाल के बीच में कर रहे हैं, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूं, एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना? आप लोग के ध्यान में ऐसा बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म हो गया तो आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही? जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूं, जो पैसा कमाता हूं फिर इस्लाम के काम में लगाता हूं, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। अब मैंने कह चुका हूं कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपए चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे में गरीब में बांटता हूं, क्या आप खुश होंगे? खुश होंगे क्या? हाँ कि नहीं? अगर वो मेरे लिए यूज करेगा मेरे तो... आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए आप खुश रहेंगे? नहीं। क्यों? तो आप कैसा दूसरे की चोरी कर सकते फिर? इसीलिए सही काम के लिए सही राह होना चाहिए, गलत राह नहीं। तो अगर आप कहते मैं इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा और इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं खुदा को, ना तुम्हारी ना मेरी। अल्लाह काफी है। अगर आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे और चोरी का पैसा गरीबों में बांटेंगे, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। ये गलत काम करके कमाना गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। माइक नंबर 4 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए, गैर मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तेजश्री। मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों है? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है, अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद।
تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے قرآن مجید کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26. صحیح ہے مسلم. اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے، کہیں بھی سنی نہیں. لفظ مسلم، قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں، کہو کہ میں سجدہ کرتی ہوں اس اللہ کے لیے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ سنی یا 24؟ That's the confused. جی کنفیوژ ہے نا. تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو، صحیح اسلام کو لو، قرآن اور صحیح حدیث. آپ قرآن پڑھیے بہن، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں جو احکامات لکھے نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ. اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ان کے بات کے مطابق پیغام دیتا ہے اب اس کو مانو. اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرنس نمبر، حدیث چیک کرو، صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو، نہیں تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو. آپ کو ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے. تو جب بھی کون کہے گا سنی، آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھا ہے قرآن مجید میں؟ ملے گا ہی نہیں آپ کو. قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. سورہ عمران سورہ نمبر 6 آیت نمبر 64. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19. فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم. اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرا اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں ہاں. اپنے پورے ہوش و آواز کے ساتھ؟ ہاں. میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کیجئے. ہاں. اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کا سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریے اور میرے فیملی کے بھی دعا کریے. انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے دعا کرے کہ اس کے مشکلات حل ہو جائے اور اس کے فیملی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے فیملی کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. مائک نمبر 5 سے پہلے میں اس بھائی سے گزارش کروں گا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ آئیں ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ سے قرآن کا ترجمہ لیں. مائک نمبر 5 میں کوئی نان مسلم خاتون ہوں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سونیا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. ماشاءاللہ بہن کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتی ہو. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आप पे कोई भी दबाव है? नहीं। आपको कोई रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहती? हाँ। आपकी पूरी होशो हवास में? हाँ। तो इंशाअल्लाह मैं कलमा दोहराऊंगा और अरबी में, और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है, और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता दे। दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। जी, माइक नंबर 1 में से भाई सवाल करें। जाकिर भाई, मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खवातीन की शोबे से सवाल था। मैं खवातीन को ये कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगा कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज्यादा खवातीन हैं जो माशाअल्लाह तकरीर करते हैं, और हमारे पास कई प्रोग्राम है खवातीन के लिए खुसूसन। और इस खवातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फरत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं, और मैं चाहता हूं कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में है माशाअल्लाह, पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहां कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है, और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज विंग में कांटेक्ट कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो आम अपने आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था, मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था,
पानी के गिलास में डालता था, अठन्नी, रुमाल निकालता था, अठन्नी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार हूं। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठन्नी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल, अठन्नी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच की टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार? जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को तोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकते हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा कि आप सल्फर या कुछ डालेंगे, एक केमिकल डालेंगे, आई थिंक सल्फर है, मैं बराबर से याद नहीं मुझे, तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। पढ़ना चाहता? आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। हाँ। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम आशीष है, मैं नेरुल से आया हूं, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूं। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे, जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 के लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं, क्या मैं अगले बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क के हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाअल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन।
میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے. اگر آپ اسلام قبول کریں تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف, سلیٹ از کلین, تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے, نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اگر آپ کس کے زنا کرتے غلط ہے, آپ ریپ کرتے غلط ہے, لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے. آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے, لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں, اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ گالی دیں گے, اس خالق کو گالی دیں گے, تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے, آپ کا نقصان ہوگا. تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو. کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے, آپ کو نقصان ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے. اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بخا ہوا انسان ہے. لیکن اگر آپ کو غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی. مانتے کہ نہیں؟ جی. مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی. مانتے ہیں. جی. کیوں, آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کے ہندو ہے؟ جی. آپ کے مذہبی کتاب میں لکھے ہے چھندوں کے اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ادھیائے نمبر 2 شلوک نمبر 1, ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 منترا نمبر 9, ناچس سے کسی جنیتا نہ چدیپا, اس ایشور اس بھگوان کا کوئی رب نہیں, اس کے کوئی والدین نہیں. لکھا ہے ستا سیتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 منترا نمبر 19 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی بت نہیں. لکھا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں منترا نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. تو صاف طور پہ کئی جگہ آپ ہندو کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, تو کیوں آپ مورتی پوجا کرتے بھائی صاحب؟ جی, اس بارے میں مجھے صحیح تعلیم نہیں ہے, مجھے تھوڑا وقت چاہیے. میں اتنے حوالے دے رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں پھینکتے جا رہا ہوں. حوالے کے حوالے دے رہا ہوں, آپ نوٹ کیجئے. جی. آپ لائبریری میں جائیے, آپ کو وید نہیں ملتا ہے تو ہماری لائبریری میں جاؤ, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آپ کو وید کا ترجمہ ملے گا, مہا بھارت کا ترجمہ ملے گا, بھگوت گیتا کے کم از کم 30 ترجمے ملیں گے, بائبل ملے گا, بائبل کا ترجمہ ملے گا, قرآن کا ترجمہ ملے گا, حدیث کا ترجمہ ملے گا. میں نہیں جانتا ہوں کہیں بھی ہندوستان میں اتنے مذہبی کتاب کا ترجمہ موجود ہے. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں فری لائبریری, ایئر کنڈیشن میں بیٹھو, فری پڑھو. انشاءاللہ آپ کو چائے پانی بھی دوں گا میں. چائے پانی رشوت نہیں ہے, تو کیا آپ ٹھنڈے دماغ سے, کبھی ٹھنڈا دوں گا کبھی چائے پانی, تو آپ اچھے دماغ سے ریسرچ کر. ہمارے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں وید کے اوپر بٹن دباؤ, ملیں گا آپ کو. کدھر لکھے ہے مورتی پوجا حرام میں, بٹن دباؤ کمپیوٹر میں نکلیں گا باہر. وید کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, بائبل کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, قرآن کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے, حدیث کے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریسرچ کیجئے کہ خدا ایک ہے, ریسرچ کیجئے کہ مورتی پوجا غلط ہے, ریسرچ کیجئے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو حق جلدی ملے گا تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائے. شکریہ. جی, مائک نمبر 3 میں جو بھائی وہ سوال کریں. جی, میرا نام سدیپ چودھری ہے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکھا اور راشی سے دیکھ کے جو بھوشیہ بتاتے ہیں وہ صحیح ہے یا جھوٹ؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ میرے کو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو پنڈت لوگ ہاتھ کی ریکھا دیکھتے اور کچھ کہتے ہیں, جو جوتش ہوتے ہیں, وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ جو ہے نا, یہ سب ڈھونگ ہے, اکثر بکواس ہے. کیوں؟ یہ سائیکالوجی کے ساتھ کھیلتے ہیں.
مثال کے طور پہ آپ جائیں گے, پوچھیں گے, وہ پنڈت کہیں گا یا مشین کہیں گی کہ آپ کے ساتھ 10 روز میں کچھ غلط ہونے والا ہے. 100 اچھا بھی ہوگا تو ایک غلط تو ہوگا نا. پھر دوسرے مشین پہ جائیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ 10 دن میں آپ کے ساتھ کوئی اچھے کام ہونے والا ہے. 10 چیز غلط ہوگی, ایک تو اچھا ہوگا. ایک مثال دوں گا میں آپ کو. امریکہ میں ایک سائیکالوجی پروفیسر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے. ایک ہفتے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا چٹھی پہ, ہر اسٹوڈنٹ کے بارے میں, اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں لکھوں گا, لیکن آپ چٹھی کو بند رکھو. ایک ساتھ چٹھی کھولو اور نمبر دو کتنے فیصد میں صحیح تھا. تو سب بچے 100 بچے تھے, اپنی چٹھی کھولتے, اس میں سے آتا ہے کہ more than 95% of the students said that the teacher was more than 90% correct. اور اس کا سیکریٹ ہے کہ 95% جو تھے طالب علم, انہوں نے کہا کہ 90% سے زیادہ جو پروفیسر نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اس کا سیکریٹ ہے کہ پروفیسر نے سب 100 بچے لوگ کے لیے وہی چیز لکھا. یہ عام بات ہے, کچھ غلط ہونے والا ہے, کچھ اچھا ہونے والا ہے, کچھ برا ہونے والا ہے. یہ ریکھا دیکھنا, اسی لیے قرآن مجید میں لکھے ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا کھینا, یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, ڈیڈیکیشن آف سٹون, ڈیوائنیشن آف ایروز, بت پرستی اور پھانسے پھینکنا, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہٹ کنڈے ہے. رجس من عمل شیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اور آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. تو یہ پھانسے پھینکنا, جوتش گری, یہ حرام ہے, شیطان کے ہتھ کنڈے, آپ اس سے بچو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے اللہ کے؟ نہیں, میں یہ جاننے کے لیے قرآن کا ہندی ترجمہ چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ جو بھی زبان پہ آپ کو مہارت ہے, ہندی زبان پہ تو ہندی ترجمہ لیجئے, مراٹھی زبان تو مراٹھی پہ لیجئے, آپ یہاں سکتے ترجمہ لے سکتے. اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ ترجمہ پڑھیے, انشاءاللہ اس ترجمے کے ہدایت پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو صحیح راہ دکھیں گے انشاءاللہ. یہ مائک نمبر 4 سے خاتون سوال کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں ہندو کی تھی اور میرے پتی مسلم کے ہیں, تو میں میرے بچوں کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں مسلم کا. بہن نے کہا کہ وہ ہندو ہے اور اس کے شوہر مسلم ہیں, وہ مسلم بننا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی؟ ابھی 10-12 سال ہو گئے. 12 سال. تو 12 سال تک کیا آپ اپنا مذہب ہندو مذہب؟ نہیں, مسلم میں رہے سر میں. جی ہاں. اور ایسا پیس ٹی وی تمہارا دیکھو کتنے بار تو میں ایسا قبول کر کو لے سر, پھر بھی آمنے سامنے کرنا چاہتی ہوں. کتنے سال سے پیس ٹی وی دیکھ رہے؟ ابھی 4-5 سال ہوا. تو 4-5 سال سے آپ پیس ٹی وی دیکھ رہے اور پیس ٹی وی دیکھ کے پیس ٹی وی کی تعلیمات پہ عمل کرتے؟ ہاں ماشاءاللہ. ابھی آپ سب کے سامنے کلمہ کہنا چاہتی ہوں, آپ سب کے سامنے کلمہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں اللہ ایک ہے؟ بے شک. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی, مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کیا آپ کو دباؤ ہے آپ کے شوہر کی طرف سے؟ نہیں سر. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں سر. تو آپ کھلے ذہن کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके आखिरी उसके आखिरी पैगंबर और बंदे हैं। हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ क्या आपको इंशाल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मैं मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई। इंशाल्लाह और मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूं, ये इतनी अच्छा ही देख सकूं। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए, और इंशाल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाल्लाह। और सर ये पीस टीवी में हमेशा देखती हूँ और कब से देख रही हूँ, जब से बहुत हमारे घर में बदलाव आया है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सोलापुर से हूँ मैं, तो सोलापुर में ये अपना मुस्लिम का पैगाम फैलने के वास्ते साल में एक बार भी शो होना चाहिए। बहन की दरखास्त है कि ऐसा शो सोलापुर में भी है। मेरी चाहत है कि दुनिया के हर शहर में ऐसा शो हो। जो हमसे हो सकता है थोड़ा बहुत हम अल्लाह के राह में कर रहे हैं। अभी आपका फर्ज है, आप इस शो को देखो और ऐसा शो आपके वहां करो। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह का पैगाम गैरों तक पहुंचाए। यहां माशा अल्लाह लाखों का मजमा है, पूरी दरिया है माशा अल्लाह इंसानों की। इसमें तकरीबन 20 से 25% गैर मुसलमान हैं। अब मुसलमान का फर्ज है कि आपको पैगाम मिल चुका है अल्लाह की तरफ से, आप गैरों तक पैगाम पहुंचाओ। जो भी आपके हैसियत में है, जो भी आपके हैसियत में मुमकिन है वो कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और इंशाअल्लाह अगर हर मुसलमान ये पैगाम गैरों तक पहुंचाए तो हर शहर में ऐसा पीस कॉन्फ्रेंस होगा और दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। जी, माइक नंबर 5 से खातून सवाल कर सकती हैं। Hello sir, I'm Palak Lalka from Kharghar. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो मूर्ति का फोटोग्राफ, वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं। क्या लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, कठिन चीज बाद में सीखते हैं।
8वीं 9वीं 10वीं में, तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4. आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation. अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी. तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरा बहस होता है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते. वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए. तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की. हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए. और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए. हमें खुदा की कलाम पे, खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं. अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है. अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर. इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो. तो मैंने इतने हवाले दिया हूं. बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते. There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and... When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Yes, Sister, sir. I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram, idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? Sir, I would like to say the reason I believe in idol worship. It is, when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Yes, Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation, and if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Thank you, Hope that sir. answers the question, sister. Yeah. जी, माइक नंबर 1 में जो भाई हैं वो सवाल करें. माइक नंबर 1. Good evening, Dr. Nayak. My name is Jay Nayak, and I'm from the United States. I wanted to ask you a philosophical question about inequality. In the world, we see inequality everywhere, where some people are born poor, some are rich, some are Muslim, some are Hindu.
Some babies die at birth. All sorts of different things happen. And not everyone is given the same opportunities. In Hinduism, they say that there's reincarnation. They give Karma Siddhant, and they try to explain it in that way. I wanted to understand what Islam's take on this is. Dhruv asked a very good question. That Hinduism believes in reincarnation. Hinduism believes that you have many births. Because some people are born handicapped, some people heart disease, some people born healthy, some people poor, some people rich. So what is the justification? So actually, if you read the Hindu scriptures, in the Hindu scriptures, the highest scripture is the Ved. In Ved, nowhere will you find anywhere about the concept of cycle of birth, rebirth, never. This cycle is called in Sanskrit as samskara. Samskara means cycle of birth, death. It's nowhere in Ved. It is the philosophy of the Hindu Pandits that because they could not justify that how could God be unjust? That some people are born rich, some poor, some healthy, some handicapped. So to justify this, they came with their own philosophy. What that the Veda says is, there is Punarjanam. Veda, volume number 10. Punarjanam means, Punar means next, Janam means life. There is next life. Even Quran says that. There is next life. Life after death, hereafter. So Ved matches with the philosophy of the Quran. This samskara philosophy is brought down by the Hindu Pandits because they could not justify how come some human beings are born handicapped, some healthy, some poor, some rich. The justification is there in the Quran. The Quran says your children, your wealth are a test for you. It's a fitna. Fitna means it's a test. God is testing different human beings with different tests. When you appear for an examination, the question paper keeps on changing. If the same question paper is there, then where is the test? Quran says in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. Who is testing which is good indeed. So wealth and your children are a test. Example, suppose there is a very pious family. The mother and father always pray to God. They are good human beings. Now a handicap is born in the family. Now God is testing them more that do they yet believe in God or not. Some people with weak faith will start saying, what is this God? I am so good yet in my family is born a handicapped child. The person who's really believing in God, he says, Alhamdulillah, praise be to God. Now when you appear for an examination, if you appear for a BA degree, the test is easy. If you appear for MBBS medical degree, it is more difficult. But more difficult the examination, more higher is the reward. If you appear for MBBS, the moment you pass, you get a doctor before your name, correct? So more difficult the test, more higher is the reward. So Allah may be testing the parents. I want to, if after they pass the low test, Allah wants a handicapped child. Now Allah want to test them, believe in Allah or not? They get so these children are, nowhere does the Quran say the handicapped child will go to hell. Every child is born masoom, innocent. Allah gives you wealth. God gives you wealth to test how do you spend the wealth. If you are poor, you have to give no zakat. The poor man gets 100 out of 100 in zakat. The rich man, he may give zakat, may not give. He may give part zakat. He may get 0, he may get 10 out of 100, he may get 50, he may get 100. Poor man in zakat gets 100 out of 100. We say poor man, Garib. Poor man has already got 100 out of 100 in zakat. So God Almighty tests different people in different way, some with wealth, some with health, some with difficulty. So this is a test for the hereafter. So this is the philosophy of Islam, not birth, death, birth, death. Veda says that, Quran says that you're born here again, Allah will cause you to die, Allah will resurrect you on the day of judgment. Then there will be hisab kitab, there will be the whether you have done good deeds or bad deeds. If your good deeds are more, then inshallah you will go to paradise. Hope that answers the question. Dr. Naik, I still have a few questions. The time is very less. Is it possible we can give someone else a chance? The time is less. We have to end the question answer session. I don't feel like this answered my question. Sorry? I don't feel like this answered. Please. आदेश चतुर्वेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूं। इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा तहे दिल से। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल में सोचता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं
اور میں ब्राह्मण को میں पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूं और मैं नॉन वेज खाता हूं, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है. बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है. जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है. एक हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं. लेकिन जब हम हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं साहब ने कहा कि उसने मेरी कैसेट देखी, मेरी तकरीर देखी और वो मुझसे धन्यवाद कहना चाहते हैं कि इस्लाम को लॉजिक. मैं पहली बार आया हूं, मैंने आपका पहली बार ना, मेरे एक भाईजान है सलीम भाई, उनके थ्रू मैं आया हूं और मैं बहुत ही उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह पे लेके आए हैं. वो भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मेरी तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं और सही तरीके से. भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है. नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है. मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है. मेरा जवाब सुनिए भाई साहब. आपने जवाब अपने सवाल तो पूछ लिया है ना. हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए. हाँ बिल्कुल. पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है. नहीं. इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है. आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी. फर्ज नहीं है इस्लाम में. लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि साइंटिफिक, आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना जी. तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? तो वही तो मेरा सवाल है कि वो उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं. हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती. आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया 8वीं गलतफहमी, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती. मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ. आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है. आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स की कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो. आप कातिल है. ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, ठीक है क्या ठीक नहीं है? नहीं दिखता है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले जाते हैं. मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, तो मैं मान नहीं रहा हूं. इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूं. इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है. साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है. जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए. साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है. ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे. जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते तो छोड़ दो. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? नहीं सर, मूर्ति पूजा गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूं कि गलत या सही है. अभी मैं गलत है या सही है? फॉलो कर रहा हूं तो मैं उसको सही मानता हूं. फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते. हाँ. आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है. नहीं, आप नहीं करते. अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं इसलिए सही है, तो ये सही दलील है? नहीं, चोरी वो मैं कहता हूं कहा गया है कि गलत है. मैं पूछता हूं, अगर एक चोर दलील देता है आपको, क्या मैं चोरी करता हूं इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत. आपके किताब में साफ तौर से अहित होता है, किसी का अहित होता है. भाई साहब, आपके किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे. मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी पूछ रहा हूं, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 घंटे से इधर है, अभी आप अगर अवेयर नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया. मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माश लिख लिए. तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता. आप घर पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए और तर्जुमा पढ़िए वेद का.
जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी कीजिए, पढ़िए। जी जी, तर्जुमे के जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जी जरूर होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 3 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम आनंद है, मैं जोधपुर से आया हूं। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु का दूसरा शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मैंने कहा मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे। उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है, अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान का शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क यह है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कि मोहम्मद कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारे किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है, भगवान एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितनी भी अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूं, मैं बम्बई में, आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूं। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्या सही है? मैं तो सही मानता हूं। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैंने किताब का हवाला दे चुका हूं, इतने हवाला दे चुका हूं। श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह हिदायत पाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से हमें सवाल जवाब का सेशन खत्म करना होगा, लेकिन सवाल जवाब सेशन खत्म करने के पहले अगर कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम खवातीन के शोबे में से या मर्द के शोबे में से इस्लाम कबूल करना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। यह आखिरी मौका है। माइक नंबर 1 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है?
कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। अमूल। अमूल, आप मानते खुदा एक है? आप मानते बुत परस्ती गलत है? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? माशाअल्लाह। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई भी दबाव? कोई भी रिश्वत दे रहा है? आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? अपने खुले ज़हन के साथ? इंशाअल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे। माइक नंबर 3 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ चाहता हूँ। मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं। कोई भी माशी दबाव? नहीं नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं नहीं, कोई आप नहीं। खुले दिल से करना चाहते हैं? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ। इंशाअल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त की किल्लत है, हमें खत्म करना चाहिए प्रोग्राम। आप इंशाअल्लाह स्पीकर लॉन्च में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन की शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो। ये आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मनीषा है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? और जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है। माशाअल्लाह। और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ। माशाअल्लाह। और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस साल भी रखी हूँ। माशाअल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है। और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे, मेरे माँ बाप हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट की हूँ, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती। और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊं। बहन मेरी दरखास्त है कि आपको इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया कहिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफर बना सके और इंशाअल्लाह आप उसे जिंदगी बसर कर सके। जी मुझे एक ही पूछना है कि भाई साहब सवाल जवाब खत्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे से सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे, 5वें माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, कोई नहीं। इंशाअल्लाह तीन भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 1 भाई है। मैं इंशाअल्लाह शहादा कहूंगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे, और दुआ करता हूं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को खत्म करते और दरख्वास्त करते कि हमारे जो भी मुकर्रिरीन हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में आ चुके, और मैं दावत देता हूं कि शेख सऊद शरेम वो इंशाअल्लाह स्टेज पे आ सके, और शेख फैजुर रहमान से कहता हूं कि मुकर्रिरीन से बुलाए। जी ठीक।